So today we will take Big-M method. Big-M method. Or method of penalties. This is another method for solving problem involving artificial variables. So yesterday in my lecture I explained you some steps. So step 1 is write the LPP into standard form. In short, I am writing now. Write LPP in standard form. Standard form. That means all the inequalities should be equality. Now, if there is only select variables, so no problem. That will give you initial basic feasible solution. If initial basic feasible solution not there, then step 2, add artificial variable. Add artificial variable to the left side. To the left side of each constant. Each equation, in fact, now it will become equation. क्योंकि standard form step 1 में change कर चुके already, so it will be equation. Each equation that has this equation में जिसमें आपके पास feasible solution नहीं मिल रहा है. That means that has no starting. That has no starting basic variable. Assign a very high. Now assign a very high penalty, say assign a very high penalty. Say M. M is very large positive number. Positive number है, great, very large positive number. बहुत बड़ा number है कोई. Very high penalty मतलब very high number M हम assign करेंगे to these variables in the objective function. In the objective function. Okay. Objective function में इसकी जो cost value है, that will be very high penalty or high number M. Zero नहीं होगा cost value इसका. Like select or surplus variables, they have cost value 0 in objective function, but it will have cost value some M, where M is very high penalty, highest value. Then step 3, apply simplex method. Apply simplex method to the modified LPP. Modified LPP जो आपकी बनी with this highest value M and constants which are now in equations with artificial variables. इसे simplex method से solve करेंगे. Following cases may arise. Following cases may arise. At the last iteration, जब हम स्टेशन में पहुंचेंगे लास्ट में, लास्ट का मतलब क्या होता है? What is the last station of simplex method? कहाँ जाके रुक जाते हैं बताइए? कोई भी नेगेटिव का मिले. हाँ, मतलब सब ऑल डेल्टा जे जब नॉन पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वो हमारा लास्ट स्टेशन होता है. तो
These are the cases may arise. At least one artificial variable, at least one artificial variable is present in the basis with zero value, with zero value. ये जीरो वैल्यू के साथ प्रेजेंट है, मतलब बेसिक वेरिएबल आपका स्टिल आर्टिफिशियल वेरिएबल इज स्टिल बेसिक वेरिएबल but with zero value. In this case, the current optimum basic feasible solution is degenerate होगा, मतलब ऑप्टिमम बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन तो होगा, लेकिन उसे हम डीजनरेट कहेंगे। डीजनरेट याद है क्या बताया था जब बेसिक सॉल्यूशन की, जब अगर कोई बेसिक वेरिएबल जीरो आ जाएगा तो वी से दैट इज डीजनरेट सॉल्यूशन, है ना। नॉन बेसिक तो हमेशा जीरो होते हैं। क्या बताया था, जब n माइनस एम पुट करते हैं तो n माइनस एम में n माइनस एम वेरिएबल्स को जीरो पुट किया फिर सॉल्व किया, तो अगर m वेरिएबल में कोई जीरो आ जाएगा तो वो डीजनरेट होता था, है ना। सेकंड केस इज at least one artificial variable is present in the basis with positive value, present है with positive value. In this case the given LPP does not possess an optimum basic feasible solution. उसका ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। ये केस आएंगे। अब आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर रिमूव हो जाता है फिर जो आंसर आपके पास आएगा वो आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा ही होगा। लेकिन अगर ये केस होता है तो इस केस में क्या होगा, या तो डीजनरेट होगा या डज नॉट पोसेस एन ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन। प्रॉब्लम में देखेंगे ये केस कब आएगा। एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 426 पेज 1110। मेथड मेंशन होगा आपको, यूजिंग बिग एम मेथड सॉल्व, क्योंकि मेथड अगर मेंशन नहीं है तो यू हैव टू चॉइसेस, इधर टू फेस मेथड और बिग एम मेथड। यूजिंग बिग एम मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम गिवन है, मैक्स ऑफ z is equal to 6x1 plus 4x2 subject to the constants 2x1 plus 3x2 less than equal to 30 and यहाँ ऐसे लिख देते हैं, नीचे स्पेस मिल जाएगा, 3x1 plus 2x2 less than equal to 24, x1 plus x2 greater than equal to 3, x1 x2 greater than equal to 0। ठीक है, इसे सॉल्व करना। So it is already in maximization, so first step as it is, no need to change anything. Here you have less than equal to the what I have to write, tell me, 2x1 Slack figures. plus s1 is equal to 30, third is less than, यहाँ s1 लिखा तो इसकी वैल्यू हाथ हाथ keep it writing it here also the cost value 0 s1। second is second constant 3x1 plus 2x2 plus s2 is equal to 24 plus 0 s2। third is x1 plus x2, now because it is greater than equal to, so I have to take minus s3, है ना, is equal to 3 plus 0 s3। because this minus is coming, you can see here, if you will form the matrix,
matrix will be 2 3 1 0 0 3 2 0 1 0 and 1 1 0 0 minus 1. So you are unable to get your initial basic feasible solution because of this minus 1. So what I have to add one artificial variable here a1 है ना. इसको मैं x2 को नहीं यूज कर सकता, यहाँ पे x2 का ऑप्शन 1 था लेकिन बाकी जगह पे 1 0 0 नहीं है ना, तो आई कैन नॉट यूज x2 एज अ बेसिक वेरिएबल. तो प्लस a1 जब आप यूज करेंगे तो यू विल बी गेटिंग नाउ 0 0 1 है ना. सो नाउ यू कैन सी these 3 row columns, first second and third, they are making basis matrix which must be identity matrix and initial basis matrix. Clear? बोर्ड हैंग हो रहा है, बशरा आलम लिख रहे हैं. बोर्ड हैंग हो रहा है क्या दीप? नो सर अब नहीं नेटवर्क जिसका नेटवर्क स्लो रहता है उसमें लैग होने लगता है, आप लिखते सर बाद में बीच बीच में मतलब आप बोल पहले दे रहे हैं और नाउ इट्स फाइन. लिख आ रहा है बाद में. नहीं सर अब तो ये ठीक सर है अब थोड़ा ठीक है. हाँ वो नेट यार, वो मौसम खराब है ना तो नेट थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है. चलिए ठीक है भाई. इज इट क्लियर? नाउ आई हैव ऐड a1. अब यहाँ पर जो आपको आई वाज टॉकिंग अबाउट, यहाँ आई विल नॉट टेक 0, आई विल टेक माइनस m a1. यहाँ पे हम इसे लेंगे माइनस m a1, ये ध्यान रखना. विद वेरी हाई पेनल्टी m a1 with minus sign means this artificial variable, it has a very high value and we are subtracting it. ठीक है, ये बिग एम मेथड में आपको यहाँ पे रखना है. It is a step which comes in big M method. ओके, अगर यहाँ पे 2 आर्टिफिशियल वेरिएबल होते तो आई विल टेक माइनस एम ए वन माइनस एम वन ए1 m2 a2 एंड सो ऑन. चलो, so now it's clear, you got this initial basic feasible solution easily, है ना. I will put 1 2 3 non-basic variable to 0, so we get initial basic feasible solution. S1 is 30, S2 24, A1 3, है ना. ये कैसे आ गया? बाय पुटिंग x1 x2 एंड किसको 0 पुट किया है? S2 S3 S3 A1 0 नहीं है. 3 को 0 पुट करना है ना, क्योंकि आपके पास कितनी है? n है, कितने होगा? 6, m 3 थे तो 6 माइनस 3, 3 को वी विल पुट 3 नॉन बेसिक वेरिएबल जो 0 पुट करते हैं. ये तो वही चीज जो आपको मैंने बताई थी शुरू में जब हमने स्टार्ट करता है बेसिक फेज सॉल्यूशन कैसे निकालने. चलो, so now I will construct the table for this new modified LPP. This is your objective function and these are the constants. ये आपका सिस्टम ऑफ क्वेश्चंस है 3 का, ये इसके लिए बनाते हैं टेबल. चलो, सिंपलेक्स टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे. Now you are very much familiar with simplex table. सिक्स है तो थोड़ा सा चलो आगे तक ले आते हैं. टेबल हमारी जाएगी 3 टेस्टर्स वी विल बी लीडिंग. 3 टेस्टर्स के लिए लास्ट आ जाएगा कॉलम आपका मिनिमम रेशियो. ठीक है भाई. चलो, so now entries you know now very well. क्या आती है भाई बताओ जरा, याद हो गई आपको? CB YB XB CB YB XB है ना. X1 X2 X3 X1 X2 X2 S1 S2 S3 और A1
artificial value. Here CJ. CJ. minimum ratio. तो y भी पहले लिख लेते हैं, S1 S2 A1, ठीक। इनकी वैल्यूज क्या थी, 30 24 3, and CB is how much, the coefficients, इनके coefficients 0 0 minus m, 0 0 minus m. CJ will be the coefficients in the objective functions, 6 4 0 0 0 minus m, and the coefficient matrix जो आपकी थी, that is 2 3 1 0 0 0 3 2 0 1 0 0 and 1 1 0 0 minus 1, ठीक है भाई। ये डेल्टा जी। डेल्टा जे निकालते हैं, तो इसको यहाँ पे लाइन लगा, चलिए डेल्टा जे वही CV YJ माइनस CJ है ना। तो ये S1 S2 तो आपको मालूम है, जो बेसिक वेरिएबल्स है, इसके करस्पॉन्डिंग तो ये 0 ही आता है हमेशा। आप डायरेक्ट स्टार्टिंग में 0 लिख सकते हैं, ओनली 3 यू हैव टू कैलकुलेट। देखिए इजीली 0 0 है, तो 0 इंटू 0 इंटू -m 2 -6. माइनस m माइनस 6 माइनस m -m -4 और plus m. प्लस है। अब यहाँ पर आपके पास देखना है कि विच इज मोस्ट नेगेटिव। एज आई टोल्ड यू m इज वेरी लार्ज पॉजिटिव वैल्यू, तो माइनस m इज वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू, तो यू हैव माइनस m माइनस 6 माइनस m माइनस 4, तो विच वन इज लार्ज मोस्ट नेगेटिव -6. -6 है, -m -m -6 -6. ये लार्ज, ये दिस इज द मोस्ट नेगेटिव है ना, क्योंकि ये ज्यादा आपके पास नेगेटिव है। सो दिस विल एंटर, दैट मींस x1 विल एंटर्स, एरो का मतलब एंटर्स, लिख दिया एंटर्स। नाउ मिनिमम रेशियो, दिस इज योर मिनिमम रेशियो। तो मिनिमम रेशियो उसी कॉलम का लेते हैं जो कॉलम एंटर हो रहा होता है, 30/2 15 15 8 3 8 और 3. 3 3. तो ये आपका मिनिमम, इट इज लीव्स। m A1 तो ये आपके पास की एलिमेंट है ना, पाइवोट एलिमेंट या की एलिमेंट 1 ऑलरेडी 1 है, तो नो नीड टू डिवाइड बाय एनीथिंग बिकॉज इट इज ऑलरेडी यूनिटी। सो x1 विल एंटर, आर्टिफिशियल वेरिएबल विल लीव। चलो आर्टिफिशियल वेरिएबल लीव होके दोबारा भी एंटर कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास डेल्टा जे नहीं मिले तो अगर उसके करस्पॉन्डिंग मोस्ट नेगेटिव मिल जाए तो इट इज चांस कि आर्टिफिशियल वेरिएबल में री एंटर, है ना, ऐसा नहीं कि एक बार निकल जाए तो नहीं आ सकता। चलो, सो नाउ आई विल राइट फर्स्टली न्यू बेसिस वेरिएबल्स, S1 S2 and A1 is left, leave, x1 is enters, x1 and the value of this 0 0 x1 0 कितनी? 6. 6 है। 6. तो फर्स्टली राइट दिस रो, तो न्यू रो आपकी बनी वो लिखते हैं, Same. 3 1 1 0 0 minus 1 and 0. Now I will subtract, है ना, yes तो यहाँ पे 0 चाहिए, तो R2 माइनस R3 स्टार, न्यू को मैं स्टार से कहता हूँ, 3 r तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे 24 माइनस 3 है ना, 24 माइनस, 9 तो यह आ जाएगा 9 आपके पास। एक मिनट रुको, क्या लिखा हुआ है हमने, ये 15 15. 15 आएगा, 15 yes sir r2 -3 r3 star ठीक है, 3 माइनस 3 0 माइनस 1 0 1, दिस इज 3 0 ना। सिमिलरली 2 टाइप्स करेंगे, अब ये 2 है तो 30 माइनस 6 24 0
1 1 0 2, ये तो 0 रहेगा. Now again I will find my delta j. तो सेम x1 तो 0 हो जाएगा. Now it is 0, s1 is 0, s2 is 0. This 0 0 6 1 the 6, 6 minus 4 2, and 0 0 minus 6, ये minus 6 से कब भी आ रहा है ना. और ये सब 0 हो गए. देखो इसे 0 हो गया तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं. यहाँ पे आप चाहें तो इसे आप इसे ड्रॉप कर सकते हो. सर A1 की थर्ड लाइन 1 होगी ना. है फर्स्ट टेबल में A1 की थर्ड लाइन जो है ये 1 होगा ना. यहाँ पे 1 है. यहाँ ये 1 होगा. 1 होगा. वैल्यू सही लिखी थी हमने, वो ये सब है ना, कि -m + m 0 हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे इस कॉलम को मैं ड्रॉप भी कर सकता हूँ चाहे तो, क्योंकि ये 0 आ रहा है तो इट मींस इट हैज नो वैल्यू नाउ. तो 0 0 को इसको आप नेक्स्ट में ड्रॉप कर सकते हैं. नो नीड टू राइट, क्योंकि 0 का मतलब क्या हुआ, इसकी कोई वैल्यू को फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 ही नहीं. तो यू कैन ड्रॉप इट. नो नीड टू राइट अगेन एंड अगेन. यहाँ लिख दिया, नेक्स्ट टाइम हम नहीं लिखे कोई बात नहीं. बट यहाँ -6 आया है एंड इट इज द ओनली नेगेटिव, सो इट एंटर्स. And minimum ratio corresponding to this 24/2, 12, 15/3, 5, and this is minus, so I will not consider this. So this is leaves. Okay, one more time I will need this. Now, and what is the key element? 3. So it is not unity, so I will have to divide by 3. So S1 S2 leaves and S3 enters here. S3 x1 as it is. Now when you will divide, firstly divide by, इसकी वैल्यू लिख दी चलिए 0 0 6. Divide this by 3 firstly. So 3 5 is 15, 0 -1 by 3, 0 by 3 0, 1 by 3, 3 by 3 है ना. ये column I am not writing because it is 0. Now subtracting, so it is 2, twice subtract करेंगे. R1 और ये आपका है तो R1 स्टार minus twice R2 डबल स्टार ना, ये कह सकते हैं. ये न्यू है आपके पास. तो यू हैव R1 में R1 माइनस, अगर इसको मैं स्टार बोल दूं तो ट्वाइस R2 स्टार, या अगर इसे स्टार बोलेंगे तो इसको डबल स्टार कर दीजिए, क्योंकि हम स्टार से बोल रहे थे. वो नोट आई है। पता नहीं यार लोग क्या करते हैं. चलिए, सो दिस विल बी देयर. सो नाउ 24 माइनस कितना, ट्वाइस ऑफ दिस है ना. 24 माइनस 10, इसका ट्वाइस करना है तो 14. तो 0 है तो 0 माइनस 0 1, एंड इसका ट्वाइस करा तो 1 माइनस 2/3, तो 5/3. इट विल बी 1 क्योंकि 0 दैट इज, दिस इज हाउ मच, -2/3 एंड 0. एंड थर्ड में -1 है, विच इज -1. सो डिपार्टमेंट से पढ़ा. हाँ भाई. नाउ x1, तो नाउ 3 थर्ड इसमें, तो थर्ड विल बी आप नाउ R3 स्टार में क्या करेंगे कि R3 स्टार माइनस, अब ये माइनस टाइम्स है तो बस प्लस कर दो इसको, R2 डबल स्टार है ना. प्लस कर देंगे तो 1 + 1 0. तो क्या करना है, इसे ऐड कर देंगे. तो 3 + 5 8, 1 + 0 1, 2/3 0, 1/3 and 0. Now again I will find what is new delta J.
So now delta j will be, this is 0 and 0 0 2 by 3 6 into 2 by 3 minus 4 0 0 2 0. देखो यहाँ पे x2 आपके पास नहीं, लेकिन x2 भी 0 आ रहा है. Your non-basic variable is 0. It means what? Which special case it indicates? Degenerate. हैं? नहीं, degenerate तो होता है जब artificial variable present हो with positive value. तो ये केस था. When artificial variable is present with 0 value. यहाँ अगर non-basic variable present है with 0 value. Basic की तो delta j 0 होता ही है. Non-basic का delta j 0 है, तो क्या बताया था? First केस था alternative optima, है ना? If delta j is Yes, equal sir. to 0 corresponding to non-basic variable. So x2 is a non-basic variable and delta j is 0. So this is the case of alternative optima. यहाँ पर हमें एक और सॉल्यूशन मिल सकता है. बहरहाल यहाँ पे you got all delta j greater than 0. Now since all delta j greater than equal to 0 and the artificial variable is not present, so we get an optimal solution, है ना? Artificial variable is not present in the basis, we get an optimum solution. We get an optimum solution. क्या है वो? x1 is 8, x2 is 0, है ना? 2 variables थे. तो max z is how much? Max z क्या था? 6x1 plus 4x2. तो 6x1 means 6 8 48. एक सॉल्यूशन मिल गया. ठीक है, यहाँ पर जो मैं बता रहा था वो भी आप चेक कर सकते हैं. दिस इज द आंसर. ये आंसर हो गया. बट हियर since delta j is equal to 0 corresponding to non-basic variable x2, it indicates that there exists an alternative optimum. है ना? thus y2, अब कौन सा इसको जो आपका 0 है इसे मैं एंटर करा सकता हूँ ये x2 को. thus x2 can enter in the basis. In place of किसके प्लेस में आ सकता है? कि जो आपके पास S1 S3 थे, क्योंकि S1 S3 आपके पास क्या है? आर्टिफिशियल वेरिएबल. ये सिलेक्ट सरप्लस वेरिएबल्स S1 और S3. इनकी जगह पर हम इसे भी एंटर कर सकते हैं. मान लो मैं S1 की प्लेस पे एंटर करूँ. वैसे भी आपको जब आप रेशियो निकालेंगे तो माइनस है तो रेशियो जो आएगा इसके करस्पॉन्डिंग में नहीं हो जाएगा, है ना? 14/5/3. So suppose I am taking in place of S1. So one more table you can find. Suppose I am taking here S1 की प्लेस पर I am entering X1. तो आपके पास न्यू ये हो जाएगा X2 S3 और ये तो X1 था, है ना? जब इसे एंटर कराएंगे you are entering this, तो you will have to take this is this your pivot element 5/3, key element is 5/3. तो 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 5/3 से डिवाइड कर दे तो ये 1 बन जाएगा. तो न्यू टेबल विल बी, its value will be 42/5 and here 0 1 3/5 minus 2/50. डायरेक्ट वैल्यू लिख दी मैंने x1 x2 x3 s1 s2.
and the value of x2 is now here, it is 406. cj वही है 6400. अब हमें इसे 1 बनाना है तो ये -1/3 है, तो वही सब प्रोसेस चलेगा, 1/3 टाइम्स ऐड करेंगे इसमें, तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ इसको, ये कैलकुलेशन अब आपको मालूम है। तो 39/5 0 1 1/5 1/5 1 and 12/5 1 0 -2/5 3/5 0. ठीक है। Now you will find your delta j. So delta j will be, अगर आप चेक करेंगे सब आएंगे अब भी वो greater than equal to 0 ही, 0 x1 0 x2 0 और आपका s3 ये 0 है ही, इसे आप चेक करें निकाल लें कितना आ रहा है, ये भी 0 आया है, it is 2. So now again you got maximum value at, so we got optimum value, we get another optimum solution at x1 is 12/5 x2 42/5. मैक्स जेड वही रहेगी वैल्यू ऑप्टिमम है ना, सॉल्यूशन मिला है वैल्यू नहीं है, देख लो चाहे तो रखे 6 इंटू 12/5 था प्लस 4x2 था 42/5 है ना, चेक करो देखो कितना आएगा, 48 आ रहा है। बताइए आ रहा है नहीं आ रहा यार, देखो नहीं आ रहा कि इसमें 48 1/5 कॉमन ले लें हम, आएगा, पास से कितना हो गया 78 और ये आपका कितना हो गया 168 हो जाएगा। 16, यहाँ 8 आ रहा है क्या, 6 तो नहीं पा रहा, अच्छा नहीं ये 72 है, कितना हो गया 170 250 250 अपॉन 250 5 है सर 240 होगा, 240 होगा सर, 160 एंड 240 70 और 70 240 हो 72 और 168 240 170 हो गया ये और 70, ठीक है कितना हो गया ये 48 48 48 आ रहा, ठीक है ना, ठीक है चेक आना ही चाहिए था हम, सो इन दिस यू कैन गेट दिस। एक और प्रॉब्लम है इसमें, आपको जो वो केस लिखे थे उनमें से एक केस आएगा, मैक्स ऑफ z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x। देखो जो 2 वाले मेथड है ना, ये आप ग्राफिकली चेक कर सकते हो क्रॉस करके अपने, इन्हें आप ग्राफ से प्लॉट करके चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं है, अगर आप कभी सॉल्व कर रहे हैं ना, ग्राफ प्लॉट कर लो इसका आराम से, यू कैन चेक कि आंसर सही आ रहा है नहीं आया, कोई मिस्टेक तो नहीं हो कैलकुलेशन में, इसलिए प्रॉब्लम जो है हमने 2 वेरिएबल्स की ली है, 3 वेरिएबल्स किसी भी तरह से हो जाएंगे, 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2, 3x1 plus 4x2 greater than equal to 12, x1 x2 greater। अब यहाँ दिख रहा है देखो आपको कि ये जो है एक लेस देन इक्वल टू है ग्रेटर देन इक्वल टू है, हो सकता है इनफिजिबल सॉल्यूशन बन जाए यहाँ पे, है ना, ग्राफिकली आप चेक कर सकते हो इसे क्या आएगा, और बिग एम मेथड से दे रखा होगा इसे सॉल्व बाय बिग एम मेथड, तो यू विल राइट constants, you will add to 2x1 plus x2 plus s1 is equal to 2, 3x1 plus 4x2 minus s2 plus a1 लिख दिया मैंने डायरेक्ट यहाँ पर अब, so you will be having 0 s1 plus 0 s2 and minus m a1, है ना। आप ग्राफिकली पहले चेक कर लीजिए इसका आंसर क्या होगा, उसे हम बिग एम मेथड से वेरीफाई कर लेंगे। तो योर इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन is how much, s1 is 2 and a1 is 12 है ना, 2/2 की आपके पास सब मैट्रिक्स बनी,
So now when you will construct the table, next पेज से बना देते हैं, थोड़ी सी बड़ी जाएगी. So when you will write all the values, 2 by 2 की बनेगी, it is small, ज़्यादा इसमें है नहीं calculation. You have S1 A1, its value is 2 and 12. Here you have 0 minus M, X1 X2 S1 S2 A1, and this is your minimum ratio. So it will be 2 1 1 0 0 3 4 0 minus 1 1. इसे आप सॉल्व कर लेंगे. तो जब लास्ट ये तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी -3m -3 -4m -2 0 m 0. तो इट इज योर नेगेटिव है ना. इट विल एंटर -4m -2. रेशियो विल बी 2 and 3. इट विल लीव. तो लास्ट जब आपके पास थर्ड उसमें जब आप नहीं सेकंड में ही आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है. नाउ यू विल कंस्ट्रक्ट न्यू एंट्री विल बी दिस x2 will enter here ना. इसे x2 लिखा हुआ है. और ये आपके पास a1 2 4 वैल्यूज विल बी व्हाट. तो यहाँ पर ये विद पॉजिटिव साइन रहेगा. पॉइंट इज दिस. तो जब पॉजिटिव वैल्यू के साथ है तो यहाँ पे क्या बताया था मैंने, इट हैज नो सॉल्यूशन. नाउ यू विल फाइंड इट. तो डेल्टा जी सारे पॉजिटिव आएंगे आपके यहाँ पे, लेकिन a1 इज प्रेजेंट with positive value, so it means LP does not has feasible solution. LPP does not possess any feasible solution. आप उसे चेक कर सकते हैं ग्राफिकली. does not possess any feasible solution. ठीक है. यहाँ ये वाला केस हो जाएगा क्योंकि यहाँ डेल्टा जी आप निकालेंगे सब पॉजिटिव आ जाएंगे, लेकिन A1 इज प्रेजेंट विद पॉजिटिव वैल्यू. तो ये आपका सेकंड केस जो है दिखाया. तो ये स्पेशल केस है. इसमें उस प्रॉब्लम से वो यू विल ट्राई बाय योरसेल्फ. 428 437 439 पेज नंबर 112.